मंगल की सुबह से हैवी ट्रैफिक इस शहर में नहीं होना चाहिए। अगर हैवी ट्रैफिक चलेगा तो हैवी ट्रैफिक इस काबिल नहीं रहना चाहिए कि वो दोबारा चल सके। The Karachi Anti-Terrorism Court has rejected the police's request for physical remand of Muhajir Qaumi Movement Hakiki leader Afaq Ahmed, who was arrested on charges of inciting people to burn dumpers. The court has instead sent him to jail on judicial remand. Afaq Ahmed was dramatically arrested last night while he was speaking to the media. क्या इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो पीपल्स पार्टी ने बर्बाद कर दिया इस काबिल है कि यहाँ पर हैवी ट्रैफिक चल सके? और इस हैवी ट्रैफिक की मौजूदगी में ये पुलिस वाले कौन हैं? अगर मुझे लेने आए हो तब भी आप बाहर खड़े होंगे, फिर आप नहीं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी क्या करें? आ जाओ सर, आ जाओ, कुर्सी लेकर आओ। क्या लगेगा? चलिए सर, एक कुर्सी लाओ। Today, the police presented Afaq Ahmed before the court in handcuffs, requesting his physical remand. The investigating officer stated that on Afaq Ahmed's orders, dumpers were set on fire in Karachi and further interrogation was necessary. The government lawyer supported the investigating officer's stance, arguing that Afaq Ahmed's actions had terrorized dumper owners. The court rejected the request for physical remand and sent Afaq Ahmed into judicial custody. While leaving the court, Afaq Ahmed told the media that he was being punished for raising his voice against the dumper mafia. He stated that he had spoken not only for the Muhajirs, but for all those who had lost their lives in dumper accidents. मैंने जो भी किया इस शहर में जो डंपर माफिया की वजह से जो इंसानी जानें ज़ाया हो रही थी, मैंने उस पर इंसानी हमदर्दी और इंसानियत की वजह से बात की थी और आवाज़ उठाई थी। इस शहर के लिए आवाज़ उठाने की वजह से मुझे झूठे मुकदमात में मुलविस किया गया है और मैं ज़ाहिर है कि अब जेल जा रहा हूँ, लेकिन मुझे इस बात का दुख नहीं है। मैं जब बाहर निकलूंगा तब भी इंशाअल्लाह ताला हक की आवाज़ में बुलंद करता रहूँगा इस शहर के लिए, शहर के लोगों के लिए। इस शहर के लोगों को ज़ाहिर है मुझसे अगर कोई उम्मीद है तो मैं उस उम्मीद पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा, इसलिए कि मैं उनका हूँ और वो मेरे हैं। इस शहर से मेरा ताल्लुक ज़ाहिर है कि कोई नया नहीं है, तो इस शहर के अंदर जो कुछ हो रहा है, जिस तरह इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं, तो उस पर मैंने आवाज़ उठाई थी और उस आवाज़ उठाने की वजह से मुझे ये सज़ा दी गई है। यानी मैं आज जेल जा रहा हूँ, लेकिन मेरे इस जेल जाने की वजह से वो लोग एक्सपोज हो गए जो डंपर माफिया और वाटर टैंकर की माफिया को सरपरस्ती कर रहे हैं। In the case filed at Karangi's Awami Colony police station, complainant truck driver Fareed Khan stated that when he arrived in Karangi from Hyderabad carrying cement sheets, 15 to 20 people pelted stones at his truck and set it on fire. The complaint further mentioned that the attackers said Afaq Ahmed had banned heavy traffic in the city and questioned why he had entered Karachi. According to the petitioner, the reason for setting his truck on fire was a video statement in which Afaq Ahmed had warned that from Tuesday onwards, no heavy traffic would enter the city, and if it did, consequences would follow. मंगल की सुबह से हैवी ट्रैफिक इस शहर में नहीं होना चाहिए। अगर हैवी ट्रैफिक चलेगा तो हैवी ट्रैफिक इस काबिल नहीं रहना चाहिए कि वो दोबारा चल सके। बिल्कुल बगैर किसी नताइज की परवाह किए बगैर अपने लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए
सख्त से सख्त इकदाम करने के लिए तैयार हूं। और आप लोग अपने आप को प्रिपेयर करो। तमाम महाजर नौजवानों से मैं इस मीडिया के थ्रू अपील कर रहा हूं, अपना बड़ा भाई समझ के समझो कि आफाक ने हुक्म दिया है कि इस शहर के अंदर हैवी ट्रैफिक मंगल से नहीं चलना चाहिए। अगर दिन में हैवी ट्रैफिक चलेगा तो वो उसका खमियाजा भुगतेगा और उसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी। Afaq Ahmed, however, maintains that his intention was not to incite people, but that his video statement was misrepresented. Over the past month, more than 70 citizens have lost their lives in dumper accidents in Karachi, while Afaq Ahmed claims the death toll exceeds 88. आफाक साहब ये बताइएगा कि आज एमपी ने करारदाद मंजूर की है। 1 जनवरी से अब तक 76 लोग 70 लोग नहीं मरे, 94 अफराद अब तक जो है वो जाँ बाग हुए हैं वाटर टैंकर की जद में आकर और डंपर लोडर की जद में आकर। और मैंने कोई गलत मुतालबा नहीं किया था, मैंने मुतालबा किया था कि जो लोग जाँ बाग हुए हैं उनके लवाहिकीन की माली मदद होनी चाहिए और उनके ऐलान होना चाहिए। देखिए जो लोग जाँ बाग हुए वो सारे के सारे महाजर नहीं थे, लेकिन मैंने इस शहर के तमाम लोगों के लिए आवाज उठाई थी। इस शहर में जो लोग जाँ बाग हुए उनमें पंजाबी भी हैं, पठान भी हैं। फैसलाबाद से 4 बच्चों का ग्रुप यहाँ पर कराची घूमने के लिए आया था, वो उस टैंकर की जद में आकर जो है वो जाँ बाग हुए। Following the deaths caused by dumper accidents, the Sindh government imposed restrictions on dumper movement during daytime hours. Meanwhile, in response to incidents of dumpers being set on fire, the Dumpers Association called for a strike. Dumpers Association leader Liaquat Masood welcomed Afaq Ahmed's arrest and praised the Sindh government and police for their action. सिंध गवर्नमेंट का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और सिंध पुलिस का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आईजी सिंध, एडिशनल आईजी और सारे डीआईजी साहबान, एसएसपी साहबान, पूरी सिंध पुलिस का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मुख्तलिफ इदारे का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज उसने एक ऐसा शख्स का गिरफ्तार किया जो उसने दोबारा कराची शहर का कोशिश कर रहा था और इंतशार फैलाने का और नौजवान तबका उसने गलत इस्तेमाल कर रहा था। मैं सब पूरी सिंध गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। Liaquat Masood claims that Afaq Ahmed is being punished for raising his voice for Karachi residents. They argue that while deadly dumper accidents continue to claim lives, other political factions who claim to represent Karachi's mandate are mere silent spectators. मंगल की सुबह से हैवी ट्रैफिक इस शहर में नहीं होना चाहिए। अगर हैवी ट्रैफिक चलेगा तो हैवी ट्रैफिक इस काबिल नहीं रहना चाहिए कि वो दोबारा चल सके।